Assalamu alaikum. My name is Syed Muhammad Ali and I'm a final year MBBS student of शाहजहां इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बहुत सारे जो है ना कल राउंड 1 का रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड बहुत सारे लोगों का सेम डाउट है, बहुत बार बार रिपीट हो रहे डाउट्स, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू कैन वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू कैन लिसन टू दिस वीडियो, इट विल बी वेरी गुड। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आना है। अब आप बोलेंगे सर वेबसाइट पे कहीं को आना है, वेब ऑप्शन तो हो गए, अब तो हमको कॉलेज जाना है। नहीं, कॉलेज जाने से पहले आपको वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आके ये देखिए, जो आपको जो है सबसे पहले ये जो वेब अलॉटमेंट फ़ेज़ 1 बोल के दिखा रहा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है ना एक ये आ जाता कि डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट बोल के। तो ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर बोल के है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है ना ऐसा कुछ पेज आता, एंड देन यू हैव टू क्लिक हेयर टू पे ऑनलाइन एंड डेबिट। तो आप यहाँ पे अपने डिटेल डालेंगे, डिटेल डाल के आप चेक करेंगे आपको सीट आई या नहीं आई। अगर आपको सीट नहीं आई देन आपसे ये पेमेंट नहीं पूछेगा, आपको सीधा बोल देगा कि भाई आपको सीट नहीं आई बोल के। इफ़ यू हैव गॉट सीट, इफ़ यू आर अलॉटेड सीट, देन इट विल रीडायरेक्ट यू टू द पेमेंट गेटवे, और वहाँ पे यू हैव टू पे 12,000 रुपीज़ एंड यू हैव टू डाउनलोड द अलॉटमेंट ऑर्डर। ठीक है, नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल वेबसाइट अगेन आफ्टर डाउनलोडिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। यहाँ पे राइट साइड पे देखिए आप, एप्लीकेशन प्रिंट एंड वेरिफिकेशन प्रिंट दोनों है, दो ऑप्शन है। एप्लीकेशन प्रिंट इज नथिंग बट व्हाट यू हैव डाउनलोडेड वाइल फिलिंग योर KNRHS registration form. Okay, print it if you have lost. If you have, then it is fine. The second is very important, verification print. In many what you say checklist of the colleges, it is mentioned download the verification report, download the receipt of KNRHS print. So receipt of KNRHS is application form and verification report is this second option. So you have to click the verification print. Then again they will show you the details. You have to fill your details and download it. It is free. It doesn't cost anything. Okay, सो इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें हैं, तीनों भी अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज़ आई विल एक्सप्लेन यू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ काकतिया मेडिकल कॉलेज। ऑल द कॉलेजेस 90% प्रोसीजर इज सेम ओनली, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ प्राइवेट। इन गवर्नमेंट इट इज़ 95% सेम ओनली. In private it is somewhat little different. So just listen to this, and whatever if your college is not Kakatiya, let's say if your college is any private college like Apollo or what you say Bhaskar, Mamta, then visit the official website of those colleges and download the checklist. Okay, so now I will be explaining the Kakatiya Medical College checklist, and it will be same. Again I am saying 95% same in all GMCs and 90% same in all private. So first of all, the documents you need to submit is application joining report, which means your allotment your application of KNRUHS. ठीक है, then you should submit your university provisional selection order. This is you will find different. This is not different, this is allotment order only. The thing you downloaded after paying 12,000 rupees is your allotment order. NEET admit card, आपका NEET का hall ticket. If you don't have NEET admit card, visit to official website of NEET UG and there you can download this admit card. NEET rank card, that means your NEET का result. Fifth one is bona fide study conduct certificate from first to inter. Now there is a little debate that sir मेरे पास मैं 6th से पढ़ा, मैं I don't have first to 6th, and sometimes people say that I don't have 7 I don't have till 8, I have from 8 to 12 or 9 to 12. Actually the mandatory certificate is 9 to 12 only. Few colleges may ask, if you have it you can give it, if you don't have it you can explain them कि भाई मिस हो गया या जो भी आपका रीज़न है, you can explain them. Next is SSC marks memo, which this is your 10th result. If you are from CBSE, 10th CBSE memo and pass certificate. If you are from SSC, then SSC marks memo. Intermediate marks memo, आपका इंटरमीडिएट का मेमो और 12th का मेमो. देन यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट. नाउ इसमें थोड़े जनों को डिबेट रहता, सर आई टूक अ पार्शियल ड्रॉप एंड आई जॉइन सम अदर कोर्सेज. अब वहाँ पे मैं 12th की TC दे दिया, अब व्हाट शुड आई सबमिट इन दिस रिपोर्टिंग. तो जब आप वहाँ से डिसकंटिन्यू करें तो आपको एक डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट मिला होगा, डिसकंटिन्यूड सर्टिफिकेट. तो दैट सर्टिफिकेट यू कैन सबमिट हियर in transfer certificate. Next is migration certificate. Migration certificate is not required for CBSE and SSC students. You can skip it. If you are someone coming from out of the Telangana, then you need migration certificate. 10th one is equivalent certificate. Equivalent certificate is also not required for CBSE, ICSE and SSC students. These students do not need equivalent certificate. Only if you have studied in other state like Maharashtra, Kerala, वगैरह वगैरह, if you have studied, then only you need to certificate this certificate. Now
11th one, social status certificate is nothing but your caste certificate slash EWS certificate. If you took admission as a BC candidate, then you have to submit caste. If you took admission as a EWS candidate, then you should submit the EWS certificate. PWD certificate is for physically weak and disabled. That means physically handicapped. If you are not physically handicapped, you do not need that. These are the special quotas: NCC, sports, CAP, PMC. If you do not fit in any quota, you might, अब तक तो आपको मालूम होगा कि आपको ये कोटा में आप फिट होते या नहीं होते. If you are not fitting in this quota, then need not that. Then is Aadhaar card of what you say student. Okay, in few colleges Aadhaar card of parents are also required. Then you have to submit those. ठीक है. Discontinuation bond of 20 lakh rupees and anti-ragging affidavit and by parent, by student, and then you have genuinity certificate. These are the 4 bonds. Actual required bond in all colleges are 15th and 18th. These 2 are constant in everywhere. The 16th and 17th, it differ from college to college, so better to check your college list. After that you have to make DD. DD is these are the fees of the government colleges. All government college will have same fees. DD you can make from your bank or from the account of student or parent. You have to go to bank, you have to ask your DD DD का फॉर्म पूछेंगे आप वहाँ पे. then they will give you form, then you have to fill in the favor of principal of KMC Hanamkonda, and then you can submit that form और वो आपको 10-15 मिनट में आपको DD ला के दे देंगे. DD is nothing but it is like a check. It can be made in bank. बॉन्ड कहाँ पे बनता? बॉन्ड इज़ लाइक अ रेंटल एग्रीमेंट. अगर आप कभी रेंटल एग्रीमेंट बनाए होंगे तो वो शॉप पे जाके बना सकते. अगर आप कभी नहीं बनाए तो आप गूगल मैप पे स्टैम्प पेपर शॉप नियर में सर्च करेंगे, स्टैम्प पेपर शॉप नियर में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. अब मैं एक प्राइवेट कॉलेज का भी एग्जांपल ले लेता हूँ. जस्ट अ मिनट. एक प्राइवेट कॉलेज का है एंड इसमें भी देखिए सेम है. DD बनाना है आपको, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट ऑर्डर, फिर आपका मेमो, देन आपका जो है ना इंटरमीडिएट का मेमो, फिर TC, देन बोनाफाइड्स, देन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ऑफ जेन सर्टिफिकेट. एंड देखिए दो चीज़ें कॉमन है. उसके बाद में फिर आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है और फिर आपकी कास्ट होना है, फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, देन EWS सर्टिफिकेट, देन पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट एंड ये सब NCC, CAP, PMC, एंटी रैगिंग बॉन्ड, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी एंड employment certificate of the parent not mandatory for local students. Aadhaar card of students and parent, migration certificate if applicable. मैं बता दिया कि applicable नहीं होगा. Equivalent certificate is also not applicable. देखिए portal receipt of certificate, this is nothing but again verification receipt of certificate. जो अपन राइट साइड पर सेकंड ऑप्शन कर रहे थे सेम चीज़ है. तो ये जो है ना कैंडिडेट का लेटेस्ट पासपोर्ट एंड ज़ेरॉक्स ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट. तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे जो है आपको सेम डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. लेकिन अब क्या करना है आपको, बिकॉज थोड़े कॉलेजेस में डिफरेंट चीज़ें रहते हैं. मतलब एक जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक शायद कुछ डिफरेंट है. तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे इज़ कि आप आज जो है कॉलेज चले जाइए. अगर आप जा सकते हैं, अगर आप सेम सिटी में रहते हैं या सिटी से एक 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी है, देन आप जाइए, जाके जो है ना फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे मालूम कर लीजिए. फॉर्मेलिटीज़ मालूम कर लेके देन आप आज शाम में आके बॉन्ड वगैरह जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनाना है बना सकते. कल तो संडे है, अगर कल आप जाना चाह रहे पूछ लीजिए. अगर कल खुला है तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते. अगर कल खुला नहीं है तो मंडे तो डेफिनेटली आप जाके रिपोर्ट कर सकते. इट इज़ बेटर to make 2 or 3 trips to colleges rather than मैसिंग इट अप ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग. ठीक है. सो एक ट्रिप आप मारेंगे तो आपको समझ में आ जाता. सेकंड ट्रिप में यू विल डेफिनेटली रिपोर्ट टू कॉलेज विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू गाइज हैव टू बी काम. तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब आपके पास रेडी है. एक आपको बॉन्ड बनाना है, वो मैं बोल दिया कैसा बनाना है. एक आपको जो है DD बनाना है, वो भी मैं बोल दिया कैसा बनाना है. ठीक है. तो आप टेंशन वगैरह मत लीजिए. आप जो है कॉलेज जाइए. हम अपनी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर रहे, लेकिन उसके बाद भी आप जो है ना कॉलेज जाके मालूम कर लेने से आपका ही भलाई है, उसमें आपकी बेहतरी है. तो अगर आप कॉलेज जाएंगे, मालूम करेंगे, तो आपको ही 100% अश्योरिटी मिल जाती. अगर मैं कुछ बोला, हो सकता है मैं 95% अश्योरिटी से बोलूँगा, 99% अश्योरिटी से बोलूँगा, लेकिन 100% अश्योरिटी से मैं नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकते. तो बेटर आप जो है कॉलेज जाके मालूम कर लेना बेहतर है. तो अगर आप सेम सिटी में है तो कॉलेज जाके मालूम कर लीजिए. अगर आप सेम सिटी में नहीं है, देन आप जो है इसकी जो कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट रहती
ज़रूरत है। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट किसी का नंबर, किसी का कॉन्टैक्ट अवेलेबल रहता है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है देन आप जो है ग्रुप के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, या फिर इफ़ यू कैन देन यू हैव टू ट्रैवल टू अदर सिटीज़। जैसे कि अगर कोई निज़ामाबाद से अगर किसी को हैदराबाद में मिला, उनके कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उनको एक बार हमारे ग्रुप के मतलब जितने ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा उसको बेस बना के आपको आना पड़ेगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर और एक ट्रिप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो सब चीज़ें हो जाते हैं, ठीक है। मेरा एग्जांपल अगर आप मैं बोलूँगा तो मेरे को 2 दिन लगे थे रिपोर्टिंग करने में। एक दिन जाके कॉलेज में सब चीज़ मालूम करा था, दूसरे दिन जाके रिपोर्ट करके आया था, एंड दैट कॉलेज वाज लाइक 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। तो हो जाता, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, ईजी प्रोसेस है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड दुआ करिए इंशाल्लाह राउंड 1 में किसी को जो है ना सीट नहीं मिली होंगी, या किसी को जो है सीट मिली लेकिन वो अच्छे कॉलेज में नहीं मिली होगी, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दुआ करिए, और रिपोर्टिंग करने के बाद में, रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, रिपोर्टिंग करने के बाद आप राउंड 2 में बेहतर से बेहतर कॉलेजेस के लिए ट्राई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।